हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारी फुल स्टैक डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम डे 5 पे प्रॉमिस, एसिंक अवेट एंड डॉम के मेथड को देखने वाले हैं। और जावास्क्रिप्ट का आज ये लास्ट डे है। उसके बाद हम मिनी प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस पर होगा। तो बने रहिए आप इस सीरीज में मेरे साथ। जैसा कि हमने कहा था कि 20 डेज में हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे, तो हम उसी पे ही चल रहे हैं। तो आज डे 5 में आपका बहुत बहुत वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ गया हूँ छोटी स्क्रीन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट के डे 5 पे बहुत बहुत वेलकम। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं डॉम मेथड से। व्हाट इज़ डॉम मेथड्स? क्योंकि हमने डॉम तो समझा था कि क्या होता है, बट इसके मेथड के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से। आपको जावा डॉम के क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हम सिलेक्ट करते हैं किसी एलिमेंट को, किस तरह से हम इसमें इसको मैनिपुलेट करते हैं डॉम को, तो वो हम सब आज देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डे में जो भी मेथड जो डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डॉम मेथड्स क्या होते हैं बेसिकली? तो डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्रोग्रामिंग interface for HTML and XML document. It represents the page as a structured tree of nodes and allow JavaScript to manipulate elements, style and events. So जैसे कि हमने देखा था कि DOM एक तरीके का जो हमारा ट्री बनता है, लाइक HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेक्शन हो गया, पैराग्राफ, एनीथिंग, राइट। सो एक ट्री बनाता है, लाइक पेरेंट टू चाइल्ड सारे एक सेक्शन बनते हैं। लाइक आपका कोई एट्रीब्यूट है तो वो भी आता है। तो पूरा डॉम ट्री को हम एक्सेस कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें उसको डायनेमिकली उसमें न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और डायनेमिकली न्यू एलिमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम कैसे उसको करेंगे ये सब चीज़ें, उसके लिए हम डॉम कॉमन डॉम मेथड्स का यूज़ करते हैं। सो देखते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं जिसका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो सो फर्स्ट हम किसी आइटम को सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि हम बाय आईडी। तो कैसे करते हैं उसको? तो बाय आईडी, so basically document dot get element by id. So document is a dom, like document, and dot get element by id. So we can take the id of element here from here. Okay, so this is the method of dom. So document dot get element by id, main title. Okay, so first is this. Second is by class name also we can do. So it will return the html collections. Okay, so we will see example as well, but here we will understand like how many methods we have. Okay, for selecting an element. Selecting means like uh, if you want to get the that element attributes or id, and we want to get the inside content. Okay, so we can access anything by selecting any element. So this is called selecting an element. By id we can select it, like document.get element by id, main title, and by class it will return the html collection. So class basically document.get element by class name. Okay, so this is the second method. And document.get element by tag name. Third method is by tag name. Tag means paragraph tag, heading tag, body tag, anything. Class means uh, like class is like in div we can give the attribute class, right? If I want to add any css, so we by using class we can give css as well. So that class directly we can select by document dot get element by class name. Okay, and modern way return first match. So for query selector is also very important. So in query selector you can give class name, id, or tag. Okay, so these things you can directly give. It will return the first match element basically. Okay, and modern way return node list of all the matches. And if you will give document dot query selector all, that will match, like it will see in the document like where I have used this class button, and it will return you the all the match node list. Okay, so we will see one example as well. So let's go to the VS Code. तो मैं आ गया हूँ VS Code की स्क्रीन पे। तो डे 5 के फोल्डर में मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ले लिया है और मेन डॉट जेएसएस यहाँ पे इंक्लूड कर ली है स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई डिड हियर,
like here I just created one div with id my id. Okay, so here like this is DOM methods. Okay. Here you can see here in the day 5 DOM 5 methods is printing, and here hello there DOM. Okay, so here what we will see, we will whatever we have covered so far, we will see the examples. Okay, so first what have we have seen, document dot get element by id. Okay, so let's do it. So my div document dot get element by id. Okay, and what is my id here, my id. Okay, so in this way, this is the first way to select the element. Okay, now what I will do, I will console this div, my div. Okay, here now see it, this is printing here. Now we can see what is coming inside this. Okay, so now here you can see we have the access of this element with like for like it has id my id, and now we can see the all the methods of this div. Okay, so here you can see methods of this this particular element. Here you can see attribute style map attributes. So here only attribute is id. Okay, children notes tags s2 tags collections, only one collection s2. So collection is html collection is like a element. Okay, class list, there is no class list, so it is empty. So now what we can understand from here है कि हमने अगर id से उस एलिमेंट को सिलेक्ट किया बाय डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके सारे मेथड्स आ गए, उसके अंदर क्या टैग्स है, उसके अंदर क्या आईडी है, उसके अंदर क्या क्लास है या नहीं है। सो ये सारी डिटेल हम उसकी हमें मिल गई डॉम के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से। हमने को सिलेक्ट किया और सारे मेथड के एक्सेस में मिल गया। Okay, first child, all the information is you can see here. Okay, in this way now we can select it and we can manipulate it, like if you want to add dynamically add class or any tags or text if you want to add, so you can do it dynamically. Okay, so this is the first way. Okay, so here you can see, and what is inside a document. So document is like we know document where all the element we can see. Okay, so this is my document, HTML, head tag, body, HTML. Okay, so we have the access of this. So this is my document basically, document object model. Okay, okay. So next method, if I will do class, here I will take the class. Okay, my class we can say class. So second way is that my div2 we can say document dot get element by class name. Okay, so what class name we have is my class name. Okay, in this way we can also select the any element, console dot log my div 2. Okay, now we can see what we are getting, html collection. Okay, here we have uh, learned about like what we will get when we will use uh, document dot by class name, right? So we will get the html collections here. So now you can see we have the access of all the methods,
class list. In the class list, now you can see the value because we defined the class, right? So in this way we can see, and another my div 3 document dot get by tag name. Okay, so what tag name we have here? What we will get? Let's see. Tag name is s2. So let's pass it. Now we will see the output. My div 3. Okay, so here now you can see we are getting the HTML collection of s2. So why this is coming two times s2? Okay, because now we have the access of all the s2 elements. Okay, so it will return the collections HTML collection for s2. Okay, so now that is why we are getting it s2. Let's do this s2. Okay, and second is fourth is let my div 4. Okay, document. आप इस तरह से पढ़ोगे तो शायद कभी भूलोगे भी नहीं, इस तरह से लिख के अगर आप पढ़ते हो. So here we will see query selector get element. I think query selector. Query selector. Here you can pass anything like here if I will pass class name. Okay, dot class name. So my default. Okay. Here now you can see div dot my class element we are getting. Okay, so let's do one thing. Now I will do query selector all. Okay, let my div. What I am doing? I am selecting this element basically. Div 5. Okay, so these are the main method of document. Document query selector all. So what it will return? Let's see it. If I will do my class. Okay, let me use it two times. Class 1. Did it. Okay, so here let's do my class, and you have to add dot because we are using class. If you want to give id, so you have to use the this. Now console it. My div 5. Okay, so now you will get the node list. Okay, div dot my class, div dot my class. So here you are getting the node list because this class we are using at two place. We are using this class. Okay, and if I write here, so in what is the advantage of this query selector? You can do take anything like I can give here class, I can mention the ID, I can take the any tag name. So you can take all the things whichever whatever we are using here. Okay. And query selector all. If I will put s2 here. Okay. So s2 is basically the tag name. My div 5. So now you can see because s2 I am using three times here, here. So when I'm consoling it, it is coming like node list. Okay, so this is the node basically. Now we have the access of this. We have what we did. We select this element. Now we can perform the action like
हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मीन्स हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हम इसमें कोई न्यू कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, हम इसमें आईडी को ऐड कर सकते हैं, क्लास को ऐड कर सकते हैं. सो दिस एक्टिविटी वी कैन परफॉर्म. Okay. Also we can add the create new element, we will see. Okay, so this is about basically these 5 selected element. Okay, now go back to the this document. ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने डॉक्यूमेंट पे. यहाँ पे हमने देख लिया है कि कैसे हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उसमें न्यू एलिमेंट को अपेंड कैसे कर सकते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी what I am doing here, like const new div. So if I want to add new div basically, so how I will do document dot create element. So we have the create element method of document. Okay, create element div. So this is the element name div. You can take anything, whatever you want to like make the element, you can do take it, like h1 paragraph, anything you want to add, it's up to you. So here I want to add the div, so that is why I am creating the create element div. Okay, create element. So it is very simple. I am using create element, so one element will be created, and in this element now we can add the text by using text content. So it will add this hello world on hello world text. Then document dot body, हम बॉडी में इसको अपेंड कर रहे हैं, जो भी हमारा मेन डिव है बॉडी, उसमें हम अपेंड कर रहे हैं इस न्यू डिव को. सो बेसिकली ये आपके डॉम में ऐड हो जाएगा ये डिव इस तरह से. ठीक है, सो लेट्स सी एग्जांपल. ओके, तो चलिए देखते हैं ये कोड में कि हम कैसे इसको क्रिएट एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं. Okay, so basically what I am doing here, inside the body I want to add the new element by JavaScript. Okay, so let's create new div here. Okay. Document. So firstly we have this document dot create element. So create element, that is mean I am creating new div. So what I am want to add, I want to add div. Okay, so it's created now. Now in new div I can add text content hello day 5 students, and now what I will do, document dot body append child. Okay. Now we will see it's added or not. Where we can see this here, hello day 5 students. So it is added here. You can see here. Okay, so what you can see from JavaScript I added this div. Okay, so dynamically I added basically. Okay, so these thing I can do. And if you want to add anything else, a new div dot, you have multiple things. Okay, style you can add dot like I want to give background color here red gray. So let's see. Now you can see dynamically this gray color added here. Okay, so now we have seen the creating and appending element. Okay, और modifying में हमने स्टाइल ऐड करी थी, और हम इनर टैग्स ऐड कर सकते हैं, इनर एचटीएमएल ऐड कर सकते हैं. ओके, सो मॉडिफाई भी आप कर सकते हो, चेंजिंग एट्रीब्यूट. सो हमने यहाँ तो हम मतलब कंटेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं और यहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हैं. लाइक हियर यू कैन सी image, I selected this image by this query selector. Now also you know the methods, right? Element by id or tag class query selector, etc. So here I am using query selector. It is like in this way directly, like I am taking the img.
and here set attribute. By set attribute I can add source here and this new image png. Okay, so in set attribute, first is the basically can say attribute, and here is the value. Second parameter is value. Okay, so image dot set attribute, here I am changing the attribute, and if you will do console dot log image dot get attribute source, so you will get the image. Okay, and also you can remove attribute by using remove attribute. This is for the styling, and this is for the remove. Dot remove directly with can also use removing elements. Okay, so in the query selector I am using this dot to remove, and here I can directly use the remove element, so it will be removed from the DOM. And if for the event handling, we can use this add event listener. We will see it like add event listener. What is this? So basically for the handling event, we use this add event listener. This is the event name like click, and here this is the callback function. After clicking on button, we will get this alert. Okay, so we will see up in upcoming videos. Okay, now we will move to the promise part. तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं प्रॉमिस को. सो ये हो गया आपका प्रोड्यूसिंग कोड. ओके, सो प्रोड्यूसिंग कोड हम का कैसे लिखते हैं, हम ये सीखेंगे कि प्रॉमिस को लिखना कैसे है. ठीक है, तो इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने एक वेरिएबल ले लिया माई प्रॉमिस. ओके, इसमें हमने न्यू कीवर्ड लिया, प्रॉमिस लिया. तो एक प्रॉमिस क्या है, एक तरीके का प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है, इसे बोलते हैं प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर. और फंक्शन कंस्ट्रक्टर आप जानते होंगे, तो एक कंस्ट्रक्टर में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो इससे ये पता लगता है कि एक कंस्ट्रक्टर है, इसे बोलते हैं प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर. ठीक है, न्यू का यूज कब करते हैं, जब एक हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. So at the end it is going to return the object to you. Okay, it has two parameter resolve and reject. So ये क्या होते हैं, callback होते हैं एक तरीके से. callback, resolve and reject जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हमने कैसे क्रिएट करना है, न्यू कीवर्ड लिया, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया, और रिजॉल्व और रिजेक्ट यहाँ पे टू पैरामीटर ले लिए. ठीक है, अब हम लेट सक्सेस टू ट्रू, बिकॉज यहाँ पे हम पे कोई डेटा तो फैच कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया सक्सेस ट्रू. ओके, मान के चल रहे हैं डेटा हमें मिलेगा. ठीक है, अब सेट टाइम आउट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एपीआई नहीं ले रहे हैं, डेटा को कॉल नहीं कर रहे हैं एपीआई को. तो यहाँ पे डिले को दिखाने के लिए हमने सेट टाइम आउट ले लिया कि ये कोड 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या किया, सेट टाइम आउट ले लिया. कॉल बैक में इफ सक्सेस मीन्स इफ ट्रू, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए. एल्स ये रिजेक्ट में हम पास करते रहे फेल टू फेच डेटा. ओके, सो उसको समझने की कोशिश करते हैं. ये हमने लिख दिया प्रोड्यूसिंग कोड फॉर द प्रॉमिस, माई प्रॉमिस. नाउ हम इसको कैसे इसका यूज करेंगे, नाउ वी कैन सी इट. देन ओके, सो देन मैंने यहाँ पे ले लिया. ओके, सो देन में यहाँ एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ या फिर डेटा ले लेता हूँ, और यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा. ओके, सो we can see the out here. So here you can see data fetched successfully. Okay, now I will take dot catch. So here we can take error console dot log error. Okay, so here this is for the when success, this is for the failed. Okay, so you can see if I will make it false, right, because currently it is successfully giving this data fetch, right. So here you can see failed to fetch data, and we have finally, and finally we can show some message console promise received, we can say promise received. Okay, now wait, failed to fetch data but promise received. Okay, so if I will make it
true here, true. Okay, so let's see what will print. Data fetch successfully, promise received. So even it is success or like not success, this finally message always display. Okay, it will display always. Okay, सो क्या किया हमने यहाँ पे एक प्रॉमिस बनाया न्यू कीवर्ड के थ्रू, क्योंकि ये एट द एंड एक ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ऐसे हम सीखते हैं एक्चुअली कि हम अगर देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है इस तरह से हम सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या मिला, तो हमें एक एट द एंड ऑब्जेक्ट मिला ना। ठीक है, जिसमें कि ये प्रॉमिस आ रहा है, यहाँ पे फुलफिल्ड मिला, डेटा सक्सेसफुली मिला। ठीक है, स्टेट मिली इसकी। देख सकते हो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख के आ गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के मेथड मिल गए, इसके अंदर के जो भी प्रॉमिस के मेथड होते हैं वो भी हम देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट आज हमें ख़त्म करना ही हुआ, क्योंकि डे 5 में मैंने कहा था कि हम सिंक्रोनस अवेट प्रॉमिस और डॉम का मैंने नहीं कहा था, बट डॉम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया आपके लिए। ओके, so this is the about a promise. Okay, now we will see some method, like we have some method for promise also, like all we have promise dot all, promise dot all. Okay, promise, and second is promise dot ये all लोग any, and promise dot all any, all settled, all settled. Okay, and promise dot race. So these method we have. Okay, so let's ओके, सो हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे प्रॉमिस के मेथड में क्या क्या होता है। कि प्रॉमिस डॉट ऑल रन्स मल्टीपल प्रॉमिस इन पैरेलल। ओके, सो एंड रिटर्न अ सिंगल प्रॉमिस दैट रिजॉल्व व्हेन ऑल प्रॉमिस सक्सेस, इफ एनी प्रॉमिस फेल्स, इफ रिजेक्टेड इमीडिएटली। ओके, सो बेसिकली क्या होगा इसमें, प्रॉमिस डॉट ऑल का मतलब हम मल्टीपल प्रॉमिस को एक साथ यूज कर सकते हैं। लाइक हियर यू कैन सी P1 promise dot dissolve 10, P2 new promise, P3 promise dot dissolve। ओके, और हमने promise dot all का यूज किया P1 P2 P3। ओके, सो इसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर, मैंने runs multiple promise parallelly, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 प्रॉमिस ली मैंने promise dot all में, P1 P2 P3 इस एरे के अंदर। ओके, रिटर्न अ सिंगल प्रॉमिस दैट रिजॉल्व व्हेन ऑल द प्रॉमिस सक्सेस। ओके, तो हमें इसमें रिजल्ट कब मिलेगा, जब हमारे सारे प्रॉमिस सक्सेस होंगे। अगर इवन एक भी अगर रिजेक्ट हो गया तो ये वैल्यू मतलब इशू इसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो वैल्यू मिली यहाँ पे 10। ठीक है, रिजॉल्व हुआ तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 10। फिर ये वाला रिजॉल्व हुआ, यहाँ पे वैल्यू मिल गई आपकी 20। फिर ये रिजॉल्व हुआ तो वैल्यू मिल गई 30। ठीक है, और ये एरर हो गया। एक बार हम रन करके देख लेते हैं तो आपको उसको और समझ में आएगा। सो ओके, तो मैंने उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि मैंने क्या किया। तो ये मेरा पहला प्रॉमिस था P1 P2 P3, और मैंने प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ किया जो कि सारे प्रॉमिस को एक साथ रन करेगा। ठीक है, पैरेलली। और यहाँ पे अगर वैल्यू मिल जाएंगी, तो यहाँ पे 10 20 30 वैल्यू मिल गई। ठीक है, और कैच में आपका एरर आ जाएगी अगर कोई रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या मिला हमें, प्रॉमिस रिसीव्ड। ओके, तो वैल्यू में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे इसको अभी इसकी वैल्यू मिल रही है हमें, बेसिकली वैल्यू मिलेगी 10 20 30। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो इसमें लिखा था उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट 10। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मिल गई मुझे एरर। ठीक है, तो इसने कुछ रिजल्ट नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, तो अगर एक भी प्रॉमिस अगर रिजॉल्व या रिजेक्ट हो गया तो वो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सारे प्रॉमिस रिजॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और होता है वो देखते हैं, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ऑल सेटल्ड।
ऑल सेटल्ड, स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या मिलने वाला है मुझे। यहाँ पे मिल गया मुझे एक ऑब्जेक्ट 46 पे एक ऑब्जेक्ट मिल गया, स्टेटस जिसमें फुलफिल्ड आ रहा है 10 फुलफिल्ड फुलफिल्ड फुलफिल्ड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं ऑल सेटल यूज किया तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, जिसमें कि स्टेटस है और वैल्यू है। ठीक है, और अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिजेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब क्या होगा। सो देखा आपने कि ये, अगर आपको ऑल में जो चीज़ नहीं हो रही है उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऑल सेटल्ड। इसमें क्या होता है कि अगर इवन वन ऑफ promise will reject, then it will also handle the code. Okay, so here you can see reason and status. Here we are getting value, right? Status and value, and because it is rejected, so it is coming reason 10. ओके, सो इसलिए रिजेक्ट हुआ बेसिकली 10। यहाँ पे मैसेज हमने पास किया था। यहाँ पे अगर हम लिख दें कि दिस इज रॉन्ग नंबर काइंड ऑफ, ओके, सो बिकॉज वी आर राइटिंग रॉन्ग रॉन्ग नंबर। सो यहाँ पे क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर, तो रीजन हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सो ये आपने ऑल सेटल भी समझ लिया, और यहाँ पे आपने ये भी समझ लिया ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, सो promise डॉट रेस का मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है। ठीक है, सो promise डॉट रेस में समझते हैं कि क्या होता है। सो बेसिकली होता क्या है, promise डॉट रेस रिटर्न द फर्स्ट सेटल promise, ओके, रिजॉल्व और रिजेक्ट, यूजफुल फॉर सेटिंग टाइम आउट। सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लो और फास्ट ले लिया है, यहाँ पे promise क्रिएट किया है जिसके अंदर रिजॉल्व में सेट टाइम आउट लगाया है कि रिजॉल्व स्लो और 2000। ओके, और यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको सही से लिखते हैं जिससे कि आपको और समझ में आए। ठीक है, जो तरीका होता है सेट और टाइम आउट लिखने का। ठीक है, और यहाँ को भी मैं इसको भी ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लो मीन्स ये थोड़ा स्लो रन होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेट टाइमर पे रिजॉल्व में मैंने लिख दिया कि स्लो है, ये मैसेज पास कर दिया, और यहाँ पे फास्ट लिख दिया है। ठीक है, तो प्रॉमिस डॉट ट्रेस में क्या हो रहा है कि स्लो और फास्ट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। डॉट डॉट देन रिजल्ट में क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे प्रिंट होगा फास्ट। सो जो भी आपका प्रॉमिस पहले रन हो जाएगा, रेस का मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा कि अगर डेटा जो पहले आ जाएगा ये उसका रिजल्ट दे देगा आपको। ओके, सो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या हमें मिला, फास्ट। ओके, तो जो पहले रन हो जाएगा वो दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एनी लगा दूँ तो क्या होगा, अब एनी को समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि एनी में क्या होता है। ठीक है, प्रॉमिस डॉट एनी, सो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रॉमिस डॉट एनी में क्या होता है, रिटर्न द फर्स्ट फुलफिल्ड प्रॉमिस। ओके, तो इसी कोड में समझने की कोशिश करते हैं। ऑल रिजेक्ट रिटर्न एग्रीगेट एरर। सो ये मेरे पे थ्री प्रॉमिस थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एनी लगाया और इसको पास किया तीनों प्रॉमिस को, और वैल्यू में कंसोल डॉट लॉग वैल्यू फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गई, फर्स्ट। और यहाँ पे कैच में एरर, ये क्यों मिला मुझे, रिटर्न द फर्स्ट फुलफिल्ड, क्योंकि पहले जो सबसे पहले यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। ठीक है, वो इस वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है, तो एनी, एनी मतलब एनी मीन्स कोई भी वो कितने भी सक्सेस हो रहे हैं उनमें से जो पहला दिख जाएगा इसे सक्सेस, वो ये दे देगा आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ रिजेक्ट कर देता हूँ तो ये सक्सेस टू दे देगा। तो ये था प्रॉमिस डॉट एनी। ओके, सो आई थिंक हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया कि प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस के मेथड होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने, मतलब इस मेथड के बारे में भी आपने डिटेल में कहीं देखा होगा इससे और वीडियो में। सो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके प्रॉमिस के बारे में, इतना भी आप बता दोगे ना इंटरव्यू में तो बहुत होता है। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया है। रिजॉल्व और रिजेक्ट तो हम देख ही चुके हैं, और ये कुछ डायरेक्ट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हो एक बार कि क्या है। अब एसिंक, और इसको समझ लेते हैं कि एसिंक अवेट होता है क्या है। तो ये मैंने आपके अलग से
हाँ, यहाँ पे है कोड इसका एसिंक एंड अवेट। सो एसिंक एंड अवेट क्या होता है? एसिंक अवेट इज अ सिंथेटिक सुगर ओवर प्रॉमिस मेकिंग एसिंक्रोनस कोड लुक सिंक्रोनस। ओके, तो प्रॉमिस के बाद एसिंक एंड अवेट आया। इसको हम एसिंक्रोनस कोड को बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, ठीक है, डेटा रिसीव। तो मैं ये तो आपका सिंक्रोनसली हो गया। एसिंक्रोनस अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके फंक्शन से पहले एसिंक कीवर्ड लगा दूंगा, और जो डेटा मिलने वाला होगा, जैसे हम वहाँ पर सेट टाइम आउट सेट कर लेते, अब यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम अवेट का यूज करेंगे और डेटा हमें मिल जाएगा। मतलब ये एसिंक्रोनस चीज डेटा को हैंडल कर लेगा या फंक्शन को हैंडल कर लेगा। ठीक है, और इसमें हम एरर को कैसे हैंडल करते हैं? ट्राई और कैच के थ्रू। ओके, सो एक कंपैरिजन है एक छोटा सा कि क्या कंपैरिजन क्या है, इसमें देन से हम हैंडल करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी क्लियर है, इसका कोड क्लियर है और लाइक सिंक्रोनस है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ हम अलग से नहीं कर रहे हैं। इसमें ट्राई कैश से हैंडल करते हैं, इसमें कैश से करते हैं। डिबगिंग हार्डर है टू ट्रेस इन चेंज, इजियर टू डिबग। तो ये सब था। और अगर आपको डिटेल में देखना है इसको, मैंने डिटेल में भी लिख रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यूज केसेस हो गए कि क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं, ये भी कभी क्या इंटरव्यू में पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, प्रॉमिस डॉट देन। तो इसमें आप समझ सकते हो कि देन कैश यूज करते हैं, लुक सिंक्रोनस विद वेट। ओके, यहाँ पे कैच का यूज करते हैं, यहाँ ट्राई कैच का, यहाँ पे मेथड होते हैं, यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल फॉर पैरेललिज्म, पैरेललिज्म। ओके, सो ये था दैश फॉर सुटेबल टास्क मल्टीपल प्रॉमिस कॉम्प्लेक्स फ्लो क्लीनर लॉजिक। सो यही था आज के सेशन में। काफ़ी सारी चीज़ हमने एक वीडियो में कवर करी है। डॉम के मेथड्स देखे हैं, वो भी डिटेल में। क्रिएट हमने एलिमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा है, प्रॉमिस देखा है, प्रॉमिस के सारे मेथड देखे हैं, एसिंक एंड अवेट देखा है। ठीक है, एसिंक एंड अवेट में हम और भी डिटेल में बात कर सकते हैं, बट वो मैं जावास्क्रिप्ट की जब सीरीज आएगी तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक आप इतना बता दिया तो आप समझ सकते हो कि क्या एसिंक एंड अवेट है। ठीक है, एसिंक एंड अवेट का यूज हम एपीआई कॉलिंग में भी मतलब करते हैं मोस्टली। सो और प्रॉमिस का भी कर सकते हैं, और एसिंक एंड अवेट ज़्यादा अच्छा तरीका है प्रॉमिस के मतलब इस कोड को लिखने का। और डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, वो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ। तो ये था डे 5 जो आज हमने पढ़ा। कैसा लगा आपको? आज हमने प्रोमिसेस, ठीक है, एसिंक एंड अवेट और डॉम के मेथड, प्रॉमिस के वो सारे मेथड्स वो कवर करे। ठीक है, तो आगे हम इसके बाद एक मिनी प्रोजेक्ट लेके आएंगे, और मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और उसके सारे कोड को हम समझने की कोशिश करेंगे। जावास्क्रिप्ट आज कंप्लीट हो गई है, बस एक अब मिनी प्रोजेक्ट रह गया है जो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस पे बेस्ड होगा। सो गाइस, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और ये इंटरव्यू के लिए भी आपकी एक तरह से तैयारी हो रही है। तो गाइस, खुश रहो, बी हैप्पी एंड टेक केयर।